in our course Academic Writing, and hope you are enjoying the content. And we are happy that we got very good responses even in the feedback. And I humbly request you to give the feedback on the that feedback link which is provided below every video, and in every lesson is it there. So we need your constructive feedback, and the whatever you like, please do let us know. Friends, last week we had a very good discussion with the Bentham Science team. We are trying to get some more experts from more reputed publishers. Another some more reputed publishers we will be, inviting in near future. And few things, those who have joined late in the course. First of all, nothing is skipped from you. Nothing is left. You just keep joining the keep doing the quiz questions. Uh, Last date is 30th April only. For exam registration, again, this is to inform that exam registration is not done so far. The exam registrations will be opened in last of this month or the next month. So need not to worry. We'll be informing you well in time. Okay. The next thing is what we covered in past few weeks. Out of those particular topics, this is to inform that whatever we are covering with a multidisciplinary approach. So please do try to, apply it in your discipline also, because we have covered the basic things there. I can understand that the level may not be fitting for everyone, because we have a variety of learners, So that's why we have tried to keep it very basic, because it has been a pioneer course on academic writing in India. So we tried to touch every discipline and the basics, so that even the student who's trying for the very first time to write something, to write a research paper, can get the help out of this course. So we may not be matching the expectations of senior faculty members who require the more or deep insight into that particular domain. Hopefully in the near future we'll be coming up with the faculty development program. So on academic writing course as a FDP, we are going to come up maybe. So we'll be upgrading this course so that it fits into the expectations of the faculty members. Okay. Referencing we covered last week. इस वीक से पहले वाले वीक में हमने बात भी किया था लिटरेचर रिव्यू के एस्पेक्ट में. Many of us are still not using the reference management tools like Mendeley, EndNote, Zotero. EndNote might be we are not using due to subscription, because we need subscription for using the EndNote, but not for Zotero. We can use the Zotero very efficiently. Even we can use the Microsoft Word for the digital library for referencing. You might have seen in the Microsoft Word ribbon, top ribbon, that referencing in referencing format, you can go for the citations also. You can keep the citation and then bibliography will come immediately, just like in Mendeley you can do. But that is not that much robust as Mendeley is there. Mendeley की तरह इतना robust नहीं है scholar, but yes, we can have a good management of references for citation purposes by using the Mendeley. And Mendeley में कोई ये डरने की बात नहीं है. पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं उनको बताना चाहूंगा, भैया ट्यूटोरियल खोलिए Mendeley का. हमने भी आपको ट्यूटोरियल दिया है ना, उसको देखिए कैसे करना है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जो भी लाइब्रेरी, पहले आपको Mendeley को डाउनलोड करना है, जो Mendeley है या Zotero डाउनलोड करना है. उसका प्लगइन वर्ड का आप डाउनलोड कर लीजिए. उसका जो प्लगइन है आपके सर्च बार का जो आप क्रोम में जो है उसका प्लगइन आपका डल जाएगा. तो जैसे ही आप किसी आर्टिकल को खोलते हैं तो प्लगइन में उसका एक Mendeley का साइन दिखता है साइड पे, वो प्लगइन दिखता है. उसको आप
रजिस्टर्ड फॉर्म में या रजिस्टर करते हैं तो तुरंत ही वो आपकी डिटेल उस आर्टिकल से रिलेटेड देता है, देन यू कीप ए पर्टिकुलर फोल्डर विच वी कॉल ए डिजिटल लाइब्रेरी। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्लिक करते चलते हैं तो ऐड ऑन होते चलते हैं, जैसे जैसे आप चेक करते रहेंगे। अब डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होगी, देन व्हाट वी आर डूइंग दैट, उस जो वर्ड की फाइल में हम वहां पर जो है उन साइटेशन को लिखना शुरू करते हैं। लास्ट में इंसर्ट बिब्लियोग्राफी क्लिक करते हैं तो एक साथ all at once all the references will come together in the references part, and in one click you can convert from APA to MLA, MLA to CMS, whatever you want, Vancouver to Howard, Howard to Vancouver. And that is very much useful for review writing, and that's why we have also focused in the review writing. Before research we are covering the review writing. In reviews we require a lot of references. Some references, some article you might have seen 200 500 references. Say for example, I have communicated my review article to a particular journal. For example, it gets rejected. Now I need to send it to another journal which have entirely different format. I need to change my referencing. Had it been done through the using the reference management tools, it would have been just one click task. आपने एक क्लिक किया और सारे रेफरेंसेस, टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसेस। टेक्स्ट साइटेशन किसे कहते हैं भाई? टेक्स्ट साइटेशन किसे कहते हैं? जब रेफरेंसेस को हम टेक्स्ट के बीच में किस तरह से डिनोट करते हैं। यू माइट बी पुटिंग digits, you might be putting digits in the superscript, superscript में ऊपर लटकाते हैं ना, superscript कहते हैं, and you might be putting it in the parenthesis, ब्रैकेट के अंदर ऑथर के नाम के साथ, ईयर के साथ मेंशन करते हैं ना, और लास्ट में उसको जो रेफरेंसेस हैं या साइटेशंस हैं वो इनकी लिस्टिंग होती है। तो कोई भी रेफरेंस मैनेजमेंट टूल दोनों को टेक केयर करता है कि टेक्स्ट में साइटेशन कैसे होगा और रेफरेंसेस का स्टाइल कैसे होगा, सर नेम, ऑथर नेम, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, वो चीजें जो रेफरेंस का जो फॉर्मेट है, हार्वर्ड, वैंकूवर, एपीए, एमएलए के स्टाइल में वो कैसे चेंज होता है। जब एक क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट साइटेशन भी चेंज होता है और साथ में रेफरेंसेस की फॉर्मेटिंग भी चेंज होती है। दैट वी मस्ट लर्न, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। और पीजी डेजर्टेशन में भी हम यूज करें, जो पीजी के बच्चे हैं वो भी उनको यूज करेंगे, रेफरेंस मैनेजमेंट आना चाहिए, हमको करना आना चाहिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और आप जो काम कर रहे हैं भाई, मेरे को आगे उस पर भी तो काम करना, तो डिजिटल लाइब्रेरी बनी रहेगी ना, तो आपके कहीं भी आप चले जाएं, यू जस्ट log into your Mendeley account and you will be accessing your digital library. And not only this, you can also create your in your Scholar profile or in your Google account, you can have your own digital library by Google, in the Google Scholar. You enter into the Google Scholar. Google Scholar में डायरेक्ट तो वहां भी आप डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर सकते हैं। मतलब आप क्लिक करेंगे आर्टिकल को एंड इट विल बी डायरेक्टली गॉन टू द डिजिटल लाइब्रेरी। किसी लोग को नहीं ट्राई किया है क्या आप लोगों ने? हैव एनीवन ट्राइड टू प्रिपेयर इट, टू हैव ए डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू द स्कॉलर, सिंपल गूगल स्कॉलर के तौर पे? एनीवन? हम किसी चीज को अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट अस हैव ए फ्रूटफुल डिस्कशन। मैं आपको कोशिश करता हूं कि हम उसको, यस लेट मी टेक यू टू आवर स्क्रीन में भी, तो मैं आपको फुल स्क्रीन एक्सेस देता हूं। यस, से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर, आप स्क्रीन देख रहे हैं स्कॉलर, हमने स्कॉलर पे गए एंड we can see that when we are entering the Scholar, you will see the my profile, जहां पर आप प्रोफाइल देखते हैं अपना, तो अपने प्रोफाइल में what you can see your h index, your etc etc all the thing. I'm not focusing on this aspect. Go to the my library. There is another important phenomena which is AI assisted labs. Just explore it. My library, you are going, so you can have your own. Say for example, I have different folders: reading list, 3D printing, alopecia, naringenin, etc etc. So what we can do, we can prepare a new topic and add here. एक नई लाइब्रेरी भी हम बना सकते हैं
उसमें ऐड करते जाएंगे। जो भी चीज हम देखते हैं उसको हम एंटर कर, से फॉर एग्जांपल मैंने जो है कोई आर्टिकल देखा है, से फॉर एग्जांपल दिस यू कैन से दे मैनेज लेबल्स एंड यू आर गोइंग फॉर you are creating a new label, means new article. Say for example I want to go for another say for example academic writing. I am going to a trial one maybe. Okay, I want to go for creating a new library. Digital library बना ली हमने academic writing पे. Now what I am doing that I am going to the Scholar again, back to Scholar, and example just मैं, आप पहले ही चले, आपने जो है एक फोल्डर बना लिया. Now tips for maybe academic writing, maybe. Yes, this is the article. So save, cite, cited by, related articles. Have you seen here? Simple. You just click save here, and then when you are clicking save, it will be asking कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ सेव करना है. तो then किस लाइब्रेरी में करना है? Academic writing की लाइब्रेरी में. ठीक है? And then done. In और सेव 100 टिप्स, ये एक आर्टिकल है, मान लिया मैं उसको वापस से कर रहा हूँ, एंड दिस आई हैव क्रिएटेड. सो जब भी आप कहीं मिले आप उसको, जैसे आप YouTube के प्लेलिस्ट में सेव करते हैं ना, वीडियो सेव करते हैं ना, वैसे ही आप स्कॉलर को यूज करना सीखिए, देन यू विल एंजॉय. नाउ आई एम अगेन गोइंग टू माय स्कॉलर अकाउंट मे बी एंड माय लाइब्रेरी. ओके, माय लाइब्रेरी, एंड आई कैन सी द एकेडमिक राइटिंग. क्लिक करूंगा तो देन आई विल बी हैविंग द लिस्ट. तो कहीं भी आप बैठे हों, अपने करियर के किसी भी पड़ाव पे हो, तो जो जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया होगा वो आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे अवेलेबल होगा. यहाँ लिंक्स रहते हैं, आर्टिकल स्टोर नहीं रहते, है ना. तो दैट इज अ वंडरफुल वे टू हैव योर लिटरेचर विद यू ऑलवेज. wherever we are going, whenever you are in need, you can access to a library and you can refer to that particular article which you are interested and which you want to share maybe. Okay, and this is a site, you know very well that if, when you click site, it is very easier way that in whatever format you want, you can click it here. You can also use the BibTeX and Note-RefMan Refworks format for exporting these things. So this was a very basic things regarding using Scholar in a good way for managing your references. And as we know, जैसा कि हम जानते हैं, I'm just stopping the sharing and yes, as far as the reviews are concerned, why the researchers are very much interested in reviews. I'm not sure whether Dr. Mukesh has joined us or not. Mukesh, have you joined? Maybe. Yeah, please let me know if you are there, because I'm not able to see the chat while I'm going through. आपकी कोई भी query हो तो डालिएगा chat में, है ना? ठीक है? Anyway, reviews are very much important for early career also. होता क्या है कि जब तक हमने रिसर्च नहीं किया, रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे? रिव्यू तो कम से कम आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द नॉलेज, गेटिंग द रिसोर्सेज एंड डिस्कसिंग विद योर peers, then reviews you can write. And specifically when we have mentioned that when you are conceptualizing your idea, आप supporting को literature को search करते हैं and you identify the problem, you identify the research gap, and in this process before you do, and in parallel you are doing with respect to your research also, जो वेट लैब में आप काम कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, साथ के साथ अपना अपडेट करते हैं. लिटरेचर रिव्यू कंटिन्यूस प्रोसेस है. किसी काम पे काम कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर रिसर्च वर्क पे काम कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यूसली उससे रिलेटेड आर्टिकल को सर्च करता रहता हूं. ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस, और अपने लाइब्रेरी बना रखी है, जब चाहा आपने कर दी. जब भी कोई आर्टिकल आप देखें, चाहे लिंक्डइन में देखें, चाहे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, उसे लाइक करें या कहीं ना कहीं इस तरह से रखें कि आपके डिजिटल सिग्नेचर रहे कि हाँ भाई मेरे को, मुझको देखना है कि यार मैंने उस आर्टिकल को लाइक किया था. या अगर वो शेयर नहीं भी हो पा रहा है तो लाइक कर दिया आपने, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार दिस मेरी एक्टिविटी मुझे दिख जाएगा, आई कैन एक्सेस दैट. और यू शेयर इट विद योर रिसर्च contacts or the students or the colleagues.
This will be a wonderful way of sharing the article. Simple. So that you can recall them whenever you are in need. And reviews are important because they get more citations. So, so not only journals are, not only scholars are benefited, researchers are benefited, but also the journals are also benefited. क्यों journal benefited होंगे? Because they are getting more and more citations. जितने उनके citation ज्यादा होंगे, उतने उनका impact factor बढ़ने के chance ज्यादा होंगे. So that's why you can see that most of the cases you will find the review journals, the journals which are dedicated for review or in which the reviews are prominently published, are having the higher impact factor as compared to the research only journals. क्योंकि रिसर्च का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो पर्टिकुलर कुछ दायरे के लोगों के लिए काम का होगा, और दायरे के लोग जो है एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, एक पर्टिकुलर नॉलेज डोमेन वाले, पर्टिकुलर फील्ड के वाले लोग ही उसको साइट करेंगे. बट रिव्यूज आर हैविंग द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एज कंपेयर टू द रिसर्च. So that's why the researchers get the more citation when they are citing the when they are writing the review paper. That's why you might have seen that many of our young colleagues are having very good citations, because sometimes they are only writing the review. In your profile, I understand that reviews are important. They are getting good citation for you. They are increasing your H index also. They are helpful क्योंकि उनके citation ज्यादा होंगे, किसी particular paper को ज्यादा cite किया जाएगा तो क्या होगा? The people will be having, मेरे पेपर, आपके पेपर, आपने रिव्यू अच्छे लिखे, आपके पेपर ज्यादा साइट हुए तो आपका एच इंडेक्स भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ना. बट देयर मस्ट बी ए गुड बैलेंस of research and review papers in a researcher's profile. पता चला आप जो है जाने जा रहे हो साहब कैंसर के एक्सपर्ट या कैंसर रिसर्च के एक्सपर्ट, और 100 में से 95-98 जो है आपके रिव्यू पेपर ही. रिव्यू पेपर लिख के कोई उस एटलीस्ट इन साइंसेस, कोर साइंसेस, हार्ड कोर साइंसेस, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, लाइफ साइंसेस, जहां पर वेट लैब में जाए बिना काम नहीं बनता, आप खाली रिव्यू पेपर बन के उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते. So please have a good balance. And sometimes in academic recruitment process and other process, they ask only for research papers. This might be not be the difference in the arts and humanities, but in sciences, basic sciences, this is a common practice that they want your best 10 research papers only. Then what will you do? पता चला आपको तो ढूंढने पड़ेंगे. पता चला पूरे साल भर में जहां 25-30 आप पेपर छापे थे, उसमें से 28-29 तो जो है रिव्यू थे, रिसर्च थे ही नहीं. वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट. आपके हो गए पेपर बहुत अच्छा, ठीक है, 20-25-30 कर दिए ना पेपर, बहुत है आप अर्ली करियर के लिए. अब रिसर्च पे फोकस कीजिए, रिव्यू लिखिए, अच्छे रिव्यू लिखिए जो कुछ आप नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. रिव्यू में भी वेरी डिफरेंट टाइप्स. आर्गुमेंटेटिव रिव्यूज है, स्कोपिक रिव्यूज है, और सिस्टमैटिक रिव्यू एक एडवांस फॉर्म ऑफ रिव्यू. मेटालिसिस, हमने रिसेंटली मेटालिसिस का पेपर, सिस्टमैटिक रिव्यू का पेपर करंट ड्रग थेरेपी में छापा है. इट्स अ वंडरफुल वर्क. कभी मौका लगे तो हम सिस्टमैटिक रिव्यू पे एक अलग से चर्चा भी करेंगे. बट सिस्टमैटिक रिव्यूज आर हेल्पफुल फॉर द sciences, biomedical sciences, pharmaceutical sciences researchers. It's a kind of review in which we critically examine the previous 10 years or 20 years or a particular domain, particular years के जो है पेपर को हम इस तरह से रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, जिसमें हम जो है कुछ कंडीशंस के साथ में whether they are following or not following, और कुछ कंक्लूजन करके लिए कुछ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया को लगाकर उन आर्टिकल, मान लिया 1000 आर्टिकल आपको मिले, उसमें से इंक्लूजन क्राइटेरिया हमने जो लगाया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाया, तब हमारे पास केवल दो डबल फिल्टर करने के बाद हमारे पास केवल 20-25 आर्टिकल ही बचते हैं. और सिस्टमेटिक मेटालिसिस कभी भी जो है किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, मिनिमम 2 या 2 से अधिक, और कई जर्नल तो ऐसा कहते हैं कि 3 प्लेट मिनिमम आपके
डेटाबेसेस को आपको रिव्यू करना चाहिए अगर आपको सिस्टमैटिक रिव्यू करना है। मतलब स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, और मैं कहूँ कि और कौन सा पोर्टल है जिसमें आप उसको करना चाह रहे हैं, या पबमेड में आप देख रहे हो, तो 3 को मिनिमम आपने करना होता है तब जाके इसका पेपर लिखने से बिल्कुल अतर इतर इलाका है। ये मैंने कवर किया नहीं है क्योंकि इस पर कोर्स के पार्ट में, बट यू नीड टू रजिस्टर योर अंटायर प्रोटोकॉल। सिस्टमैटिक रिव्यू के प्रोटोकॉल को अप्रूव भी कराना होता है अगर आपको अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है। कॉकरेन वगैरह जो जो एजेंसीज हैं, ये प्रोटोकॉल को रजिस्टर करना होता है। प्रोटोकॉल अगर रजिस्टर हो गया तो बहुत। प्रोटोकॉल मींस व्हाट आर द इंक्लूजन क्राइटेरिया, व्हाट आर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, व्हाट इज द हाइपोथेसिस, कैसे किया है क्या, वो जो बेसिक क्राइटेरिया है। जैसे सर्वे होता है ना, सर्वे के क्वेश्चन सेट होता है, वैसे ही सिस्टमैटिक मेथड्स में जो प्रोटोकॉल होते हैं वो अप्रूव कराना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना अप्रूव किए होगा नहीं, लेकिन जो प्रिज्मा है या जो आपका जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसको आप फुलफिल करने चाहिए और ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप रिव्यू लिखते लिखते बोर हो गए या कुछ नया करना चाहते हो, तो ट्राई सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस एंड यू विल गेट मोर यू नो एक्सेप्टेंस व्हेन यू आर राइटिंग सिस्टमैटिक रिव्यू, क्योंकि आप बहुत अच्छे तौर पे और बड़े डीप इनसाइट जाकर उसको रिसर्च को करते हैं। और मेटा एनालिसिस के में हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके फॉरेस्ट प्लॉट बनाकर हम ये बनाने की कोशिश करते हैं कौन सा पैरामीटर सिग्निफिकेंट है, क्या किस चीज की बात हम करना चाह रहे हैं। दैट इज अ वंडरफुल प्रोसेस। सो दिस वाज अबाउट द रिव्यू राइटिंग। यस, we must have a good storytelling practice, storytelling experience we must have. We cannot write the redundant kind of things. घिसी पिटी चीजों को हम वापस करेंगे तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं ना। We will have to present it. We must present in a very good pictorial presentation, graphical presentation. Nowadays we are having very good AI assisted tools. You can create AI images, created images for conceptual images, I'm telling, not for result kind of thing. Conceptual images you can create from the AI, or the various you know tools which provide you to create the research oriented research graphs, flowchart, rather than just copying a traditional kind of graph which you have been seeing for last 20 years or 25 years when you started your studies in higher education. उसको अलग ढंग से आप प्रेजेंट करेंगे तब रिव्यू लिखने का और रिव्यू को पढ़ने का आनंद आता है. It's very interesting that the more you are providing the graphical presentation, tabular presentation, infographics, the more your acceptance is. Acceptance in the sense, even in the light, even in the eyes of the reviewers. We have to do, you know, we have to give more efforts in review writing rather. All the researchers who are continuously working, they know that review writing is tougher, more complex as compared to the research paper. Research paper, simple kind of thing. If you can say that whatever you've done, you will have to present it, defend it, and discuss it. That's it. But review writing has got a greater responsibility, and specifically when you are, communicating it to a reputed journal, they need innovative. What innovative thing you are coming out of that review paper? You have to be very much unique. The expectation in different segments are different. Recent patents करके एक जर्नल की सीरीज आती है, तो ऐसा नहीं है ना कि पेटेंट का सारा उन्होंने, पेटेंट तो अवेलेबल है, आप क्लिक कीजिए कर, क्या नया करेंगे आप उसमें? व्हाट न्यू यू आर गोइंग टू ऐड? किस पर्सपेक्टिव को आप देखना चाहते हैं, किसको फोकस करना चाहते हैं? दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर. एंड इट्स आल्सो a very crucial responsibility to avoid the plagiarism in the review paper. कभी किसी फिगर को ऐसे ही उठा के नहीं डालना, कभी किसी कॉन्टेक्स्ट को सीधे सीधे ऐसे कॉपी नहीं करना. नहीं, यू हैव टू राइट इट. यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ पैराफ्रेजिंग टूल्स, एआई टूल्स पे आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं. देयर आर टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट की जो इमेज क्रिएटर टूल है, वो आपके लिए बहुत अच्छी इमेजेस देख सकता है इनपुट के साथ, इनपुट देने के बाद. देयर आर इमेज क्रिएशन टूल्स
कई फ्री का गूगल इमेजेस में आपको मिल जाएगा, या ऐसे जो आपके ल्यूसिड चार्ट करके एक अगर आप देखेंगे LUCID, इफ आई रिमेम्बर राइट, लेट मी चेक वंस मोर, या ल्यूसिड चार्ट LUCID CHART, दैट यू कैन ऑल्सो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रादर मैं शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। Yes. So you're seeing my lucid chart, the diagramming powered by intelligence. Basically, flow charting and other things, it is very much useful. I have my own login. आप अपने login से इस पे login भी कर सकते हैं. Basically simple. मेरे ख्याल से Google Assistant login इसमें होता है. And through Google you can go and you can create wonderful graph there. I will show you that how I am already enrolled there. I have shown. आई हैव क्रिएटेड, जनरली ये 3 या 4 को फ्री में देता है अकाउंट को, फिगर्स को। उसके बाद आपको जो है लास्ट पिछला फिगर को आपको डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो लाइक लुक, दिस इज अ डायग्राम वी हैव क्रिएटेड, आई एम जस्ट क्लिकिंग इट फॉर यू। जस्ट अ मिनट, या कैन यू सी, दिस इज फॉर आवर एक करंट ड्रग थेरेपी में, सॉरी करंट ड्रग टारगेट्स में हमने एक बहुत अच्छा आर्ट, आई थिंक 4.5 और 5.5 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है, जिसमें हमने पेपर को छापा था, जिसमें हमने ओबेसिटी के इन विट्रो टेस्ट को बात किया था। तो डिफरेंट टेस्ट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, कि भाई उसका प्रोसेस क्या होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, एंड इट्स वंडरफुल। देखिए किस ढंग से किया। इसमें जो ग्राफ है, ग्राफ पे आपको जस्ट यू नीड टू, आप उसको किसी तरह से भी चेंज भी कर सकते हैं। ग्राफ की जो एरोज हैं वो इस तरह से मुड़ सकता है या जॉइन कर सकता है, कौन सा शेप लाना है। स्पेसिफिकली फ्लो डायग्राम्स, rather than going for the traditional things, you must create your own, and you can color it, fill it at your own and download it in the PNG, और अच्छे रिजोल्यूशन में हम उसको कर सकते हैं। देख से एक रिसेंट हमारा जो पेपर था जिसमें मैंने कहा सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए हमने जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को बनाया था, वो हमने इस तरह से यहाँ पर बनाया है उसको फ्लो डायग्राम के तौर पर, सिंपल वे। देख रहे हैं आप इसमें, यू कैन सेलेक्ट द शेप्स हेयर, यू कैन पुट हेयर, एंड देन बाय एरो वगैरह कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्शन आपसे लेता रहता है। ओके, अगर हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इट्स वेरी मच सिंपल। आप बहुत ही आसान ढंग से इसको, लाइक ब्लैंक डायग्राम को मैं अगर लेता हूं, मान लिया जस्ट इट्स अ ड्राफ्ट, ये सिंपल सा एग्जांपल है। देयर आर सो मेनी टूल्स फ्रीली अवेलेबल, जो कि रिसर्च के जो इक्विपमेंट्स है उसको भी बड़े अच्छे डायग्राम को हमको बना लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल नाउ दिस, ये आपने किया, एंड देन दिस, और मे बी इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, एंड देन एरो में ले रहा हूं तो जैसे हम बनाते हैं ना, ये एरो यहाँ पर आ गया, देखिए। ठीक है, दिस, और इसको आप मोड़ भी सकते हैं इस तरह से जैसे करेंगे, और कोई बॉक्स चाहिए, जहां पर भी चाहिए आप उसको जो है अलाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले विद दिस। इट्स अ वंडरफुल टूल, बहुत सिंपल टूल है। 4 फिगर फ्री देता है, तो कम से कम आपके पुराने फिगर को आप डिलीट कर लीजिए, तो 4 फिगर आपके पास हमेशा रहेंगे। आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास रहेगा ही, पर आप यहाँ से जो है इसकी लाइब्रेरी में केवल आई थिंक विदाउट सब्सक्रिप्शन केवल 4 फिगर ही रख सकते हैं। एनीवे, this is just an example. You may have n number of things, n number of tools like this to prepare your graph, and specifically when the journal demand the high resolution graphs, तो कहीं से जो कॉपी करेंगे ना वो हाई रिजोल्यूशन नहीं आएगा। बेंथम की बात करें, बेंथम डजंट अलाउ लो रेजोल्यूशन के रेफरेंस, वो फिगर लेगा ही नहीं आप। यू विल बी क्रिएटिंग अ थिंग, तो आपका आर्टिकल केवल हाई रेजोल्यूशन फिगर के लिए अटका रहेगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव टू पे फॉर दैट इन दैट केस। तो अच्छे रिजोल्यूशन के अगर आपको फिगर बनाने हैं, ऐसे ब्लर से ना हो, वो ना हो, तो आपको आना चाहिए। नॉट ओनली दीज थिंग्स, बट ऑल्सो कमांड ऑन द ओरिजिन, एक्सेल, ओरिजिन सॉफ्टवेयर जानते हैं ना, एक्सेल है या ओरिजिन है, उस पर काम करना आना चाहिए, ताकि फिगर अच्छी क्वालिटी का फिगर डायरेक्ट वहां से लाएं, दैट इट विल बी हैविंग अ हाई रिजोल्यूशन। फिगर का बहुत इंपॉर्टेंस है, टेबुलर इन्फोग्राफिक का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन।
और तब किस तरह से आप, ये तो हमने मॉड्यूल में डिस्कस किया ही है कि किस तरह से हम उसे डिस्कस करें, किस तरह से हम उसको कोहेजन एंड कोहेरेंस के ताने बाने में जोड़ें, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये मैं बता रहा हूँ कि जो है इट इज वेरी क्रूशियल दैट रिव्यू पेपर्स require more efforts. So anyone have any query so far, you can ask any question, not only just with this respect. And soon we are going to, I think in the next week we are going to discuss the most awaited week, that writing a research article, जिसमें हम बात करेंगे रेफरेंसिंग सबमिशन और पोस्ट सबमिशन की भी हम बात करने वाले हैं कि जो रेफरेंस मैनेजमेंट है, रेफरेंसिंग उसको डिटेल में रेफरेंसिंग की हम बात करेंगे, वो वीक 10 में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम अगले हफ्ते हम बात करेंगे रिसर्च आर्टिकल की राइटिंग की बात, ठीक है। तो और जब ये तो वीक 11 में हम थीसिस राइटिंग की बात करेंगे। उसके बाद Professor Rajat Agrawal will be with us for coming 2 weeks for 12 and week 13 empirical studies, the challenges in academic writing. तो बात करेंगे, it is going to be very interesting one. I will also be inviting the great researcher with high H index there. Soon I'll be inviting, and most probably next week or maybe next to next week. Okay. So हाँ, मैं जरा एक चैट बॉक्स में देखूं, और आप मेरे को अनम्यूट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझको। आज मुकेश जी हमारे साथ नहीं है, तो मुकेश विद अस। तो हाउ कैन यू नो इफ ए जर्नल इज इन Q1 और Q2? जनरली देखिए SJR में आप जाते हैं, जर्नल का नाम डालिए SJR देखिएगा, सिमागो जर्नल रैंक, उसमें आप डालिएगा तो इट प्रोवाइड्स उसके लिंक जो है स्कोपस से रिलेटेड डेटा को पूरा दिखाता है Q1 और Q2 में, वो Q1 में है कि Q2 में। यू हैव टू गो देयर SJR करके, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, let me show you. Yes, just a minute. Say for example, I'm talking about current drug target. करंट टारगेट एक जर्नल है, फॉर एग्जांपल, जो आपको जर्नल आपको पता है। इन जनरल बेंथम साइंस तो क्योंकि स्कोपस को पूरी तरह से फॉलो करता है, तो आपको तुरंत ही वहां पर पहले तो वहीं दिख जाएगा। इफ यू गो फॉर द उसके जो मेन पेज है उसमें दिख जाएगा। जर्नल में अगर नहीं भी देखना है तो शायद यस, तो व्हेन यू आर गोइंग टू द इम्पैक्ट फैक्टर साइड स्कोर में आप जा रहे हैं, तो लाइक से फॉर एग्जांपल करंट ड्रग टारगेट्स में साइड स्कोर का 7.2 है, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर आपका इसका ये है। तो द व्यू डिटेल्स, इसके साइड स्कोर में जाएं, स्कोपस वाले पोर्शन में आप जाएंगे, देन यू विल कम टू नो, तो आपको आप पता चल जाएगा कि वो किस क्वार्टाइल में है। ये क्वार्टाइल में देखने का तरीका, परसेंट क्वार्टाइल या क्वार्टाइल एक ही चीज होती है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। सो यू कैन चेक इट आउट दैट यस, ये परसेंटाइल जो ये बता रहा है, ये इसके हम ग्राफ में जाते हैं, इसके SJR में देख सकते हैं। लेट मी चेक साइड स्कोर्स का 7.6, दिस इज द मैट्रिक्स जो आपको ये मैट्रिक्स बताता है पूरा। एंड देन यू कैन चेक all the aspect, just a minute, but I'm missing here. Yeah, side score, rank and trend, इस पर क्लिक करेंगे। yes, you can have an idea कि वो, देखिए जस्ट a minute, मुझको इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा। हाँ, तो साइड स्कोर वैल्यूज आपको यहाँ पर जैसे दिख रही हैं, और परसेंटाइल कैटेगरी भी आपको मिलेगी किस परसेंटाइल में है, ठीक है, परसेंटाइल में है। और स्कोपस कंटेंट कवरेज के एस्पेक्ट में कितने डॉक्यूमेंट वो कवर कर रहा है, साइड स्कोर के कर रहा है। और एक चीज और, जो इसका जो पूरा ग्राफ प्रेजेंट करता है, वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ राइट नाउ मेरे ख्याल से। ये 78 परसेंटाइल पे है, तो ऑब्वियसली ये Q1 में है वैसे तो देखा जाए, ठीक है। बट ग्राफ में वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी वो Q1 Q2 बताता है। आई एम जस्ट अनेबल टू फाइंड दैट राइट एट दिस मोमेंट, बट होल्ड ऑन।
Q2। वैसे तो आपको इस पे दिख जाएगा, लेकिन इसका जो आपको या स्कोपस जर्नल्स एंड कंट्री रैंक SJR, वही मैं कह रहा था, सिमागो जर्नल रैंक SJR में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट द डिटेल्स कंप्लीटली, क्योंकि स्कोपस वो करता है ना, स्कोपस सोर्स में जाएंगे, सिमागो जर्नल रैंक SCIMAGOJR.com। तो ये जो आप देखेंगे, इसमें आप जर्नल को एंटर करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि उसका किस क्वार्टाइल में वो है। वो 2024 का आपको मिलेगा, Q2 क्वार्टाइल रैंक है इसका, और एच इंडेक्स जर्नल का जो है 123 है। तो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो गेट दिस थिंग। इस तरह से आपको पूरी ग्राफिकल, यही मैं जो बात कर रहा था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ आपको पूरा बताएगा दैट यस इन विच क्वार्टाइल इट इज। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, यू विल कम टू नो ऑन सिमागो जर्नल रैंक। इसे क्या कहते हैं? सिमागो जर्नल रैंक। और सारा आप उसका जो ओवरऑल प्रोफाइल है, ये जो कह रहे थे ना आप, ये विल कम टू नो, है ना। तो इन दैट वे इट, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, लेकिन हम बहुत से बात कर सकते हैं कि बहुत से एस्पेक्ट में बात कर सकते हैं कि आप Q1 जर्नल, Q2 जर्नल को एल्सवेयर वगैरह के जर्नल में उसमें किस तरह से देखें, वो भी करते हैं। ठीक है। तो हम्म, तो एज फार एज द बायर रेंडर इज कंसर्न, बायर रेंडर जब बात करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो है हमारे काफी काम की है, खासकर जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए। एक लार्ज लाइब्रेरी होती है, इसमें इजी टू यूज टेम्पलेट्स इसमें आपको मिलेंगे। एंड वेरी, जैसे मैंने बताया, जैसे लूसी चार्ट है, ऐसी तरह लूसी चार्ट में भी आपको टेम्पलेट मिलते हैं। बायर रेंडर भी काफी कुछ उसके लिए है, और एक फ्रीमियम वर्जन है, कुछ फ्री है इसमें, बाकी उसके बाद यू हैव टू पे फॉर दैट। और बायर रेंडर इज जस्ट एन एग्जांपल, इसके अलावा बहुत से एग्जांपल्स है, बहुत सारी फ्री अवेलेबल चीजें हैं। ओपन मतलब क्या है कि ओपन सोर्स के ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं विच कैन क्रिएट यू नो फिगर्स फॉर यू। अभी मैं रिसेंटली एक को पढ़ रहा था, मैंने बल्कि अपने स्टूडेंट को, अपनी रिसेंट हमारे रिसेंट पीएचडी स्टूडेंट को मैंने वो भेज दिया था। मैं कहीं देख रहा था, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट एक मैं देख रहा था कि डायग्राम से, जो डायग्राम्स के प्रेजेंटेशन के लिए बड़ी अच्छी एक वेबसाइट जो है अभी रिसेंटली आई है, या टूल आया है, जिसकी सहायता से हम बना सके प्लांटा करके। अगर आपने देखा, GPI, यस, या दिस इज GPI करके आप देखेंगे, मैंने फेसबुक में देखा था, मैं उसको केवल एक्सप्लोर कर रहा था कि यस, है ना। सो दिस इज द पब्लिकेशन फिगर, GPI। यस, लेट मी चेक, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं सॉरी, मैं आपको देख नहीं रहा था, मैं आपकी क्वेरीज को भी आंसर करता चलूंगा, है ना। हम कह रहे थे कि तो नैन्सी कहती हैं कि बायर एंटर को स्पेसिफिकली जो है, हिरानी हिरानी जी, वी वोंट बी डिस्कसिंग, बट यस, मैंने जो थोड़ा सा दिया ही है। इस तरह के बहुत टूल है, हम किसी एक सिंगल टूल पे बात करने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, नैन्सी सेइंग दैट नमस्ते सर, आई एम अ मास्टर्स इन दिस स्टूडेंट, बट सर आई एम अवेयर अबाउट सोशल साइंस रिसर्च methodology, but how language research differ from social science research? Language research differ from social science research. Can individual follow multidisciplinary approach in language paper research as well? ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च लैंग्वेज बेस पे भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हर चीज की जा सकती है रिसर्च में। आपको अपने कॉन्टेम्परेरी लोगों से और अपने जो पूर्ववर्ती जो काम किए हुए हैं उनके साथ बैठकर आप बात करें, और नए एक्सपोजर के साथ देखें कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, लैंग्वेज सोशल साइंसेज में जो न्यू जनरेशन है, हाईटेक जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉट ओनली इन द इंडियन पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो इन द अदर पर्सपेक्टिव, वो लोग क्या काम कर रहे हैं उसको फॉलो सूट करने की कोशिश तो करें। एक बार देखे तो सही, केवल ये ना देखे कि आपका इमीडिएट सीनियर या इमीडिएट सुपरवाइजर क्या कर रहा है या आपका कलीग क्या कर रहा है। आप ये देखें कि और इंस्टीट्यूट में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके डिपार्टमेंट में वो किस तरह का काम कर रहे हैं। यू विल सर्टेनली गेट द एनी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, आई एम श्योर, प्रीटी श्योर। इसके लिए बहुत, देखिए, हर सब्जेक्ट में कुछ नया करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और जो रादर पुरानी चीजों में चिपके रह जाते हैं वो छूट जाते हैं, वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, तो हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है सर, हाउ कैन वी नो द बेस्ट जर्नल फॉर कंप्यूटर साइंस? ये मैंने बताया, जर्नल फाइंडर की हमने बात करी है। आप ये देखें कि अपने फील्ड के लोग जिसका एच इंडेक्स ज्यादा है, जो वो कहाँ का पब्लिश कर रहा है, दैट यू कैन ऑल्सो सी। तो देर आर वेज, आप डिफरेंट वे में कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के तो
बहुत से जर्नल आपको मिलेगा। आप फील्ड में जाए, पब्लिशर की वेबसाइट में जाए, वहां पर कंप्यूटर साइंस डोमेन पे जाए, फिर यू विल गेट द लिस्ट ऑफ जर्नल्स। अब आप ये देखिए कि मैंने बताया था ना कि आप हाई इंपैक्ट में छापना चाहते हैं कि जल्दी छापना चाहते हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इम्पैक्ट, स्पीड एंड रीच, डिपेंडिंग ऑन दैट योर चॉइस। देखिए बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट फिट, मैंने क्या बताया, नो जर्नल इज बेस्ट, नो वट एवर द जर्नल बेस्ट फिट फॉर अस इज सुटेबल फॉर अस। हमारे लिए सुटेबल जर्नल है क्या है। मेरा पेपर बेस्ट तो बहुत जर्नल होगा जिसका 350-400 इम्पैक्ट फैक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है बेस्ट जर्नल, उसको मानेंगे क्या। पर हमारा काम तो कभी है ही नहीं, हम तो छाप ही नहीं पाएंगे बेस्ट। हमारे लिए बेस्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर अस, what is best fit for us is actually the most suitable journal which we should target for. Okay. uh, can you suggest the 3 tools for yeah book? Sorry, I couldn't understand regarding the book. We are giving the content freely to you, and you can download that content. And if you want to purchase the book, you can. That academic writing book we are talking about, it is available in the from Bentham Science Publishers. The link is already available to you. Okay. Sorry, with respect to the copyright, I cannot go for copyright violation, so I cannot distribute it for free because of the interest of publishers are there with respect to their commercial interests are available there. So you can, if you really want to go for that, you will get also a good discount there, and you can directly apply rather than going for Amazon. You can directly go through that publisher link and buy that book. Can you suggest 3 tools for high resolution for graphic and yeah, 3 tools. नो पहला टूल तो मैं कहूंगा कि जो वट एवर वी आर क्रिएटिंग थ्रू एक्सेल और ओरिजिन, किसी भी ग्राफ से जो हम खरीद रहे हैं या इवन कैनवा से, तो whenever we are creating an image, आप इमेज को ओरिजिनल फॉर्म में लेके रखें, उसका ओरिजिनल जो ग्राफ है वो आपके पास होना ही होना चाहिए। whenever you are copying excel graph directly there as an image, वो सबसे अच्छे फॉर्मेशन रिजोल्यूशन में जाएगा। इफ यू आर क्रिएटिंग द ग्राफ इन कैनवा, then you can have a different कितने DPI में आपको चाहिए, कितने कौन सा रिजोल्यूशन आपको चाहिए, you can also select. Okay, depending on that, उस अच्छे रिजोल्यूशन में ही उसको सेव कीजिए, then you can go for that. And most commonly जो freely आजकल AI भी आपकी इमेज को एनहांस कर देता है। You can upload your image to the particular AI tool, whatever tool you are mentioning, and also in the Microsoft images, if you are having Microsoft 365 tool, Microsoft 365 as a official tool, you will be uploading it and you will ask them to improve the resolution. तो अटमोस्ट जहां तक भी संभव होगा वो आपको रिजोल्यूशन को इंप्रूव करके दे देगा अपने आप। एंड इट्स नथिंग टू बी, ये कोई लीगल नहीं है या कोई, इट्स नॉट मिसकंडक्ट टू गेट द हेल्प ऑफ इंप्रूविंग द फिगर until mark my words, until the figure belongs to the result. पता चला रिजल्ट में मैं कैंसर सेल्स के कलर को दिखा रहा हूँ कि ये कलर इससे अलग है, अब मैं उसको रिजोल्यूशन को चेंज कर रहा हूँ जिससे उसके कलर चेंज हो गए, जिससे मेरे रिजल्ट का डेटा और इंटरप्रिटेशन ही चेंज हो रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। In plagiarism, you must be remembering that Japanese researcher who hanged himself because there was a plagiarism of stem cell harvesting figure. तो उस फिगर में प्लेजरिज्म नहीं चलेगा। उस फिगर के रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए अगर मैं कहूंगा, दैट इज, अगर कलर वगैरह की बात हो रही है जिसके रिजोल्यूशन को बढ़ाने से अगर रिजल्ट में असर पड़ता है, तो दैट इज मिसकंडक्ट। इफ रिजोल्यूशन इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन ओनली, इंप्रूविंग द रिजोल्यूशन, देन इट्स ओके। आई कैन नॉट गो, पता चला जी मैं जो है एक ऐसी कॉस्मेटिक क्रीम बना रहा हूं जिससे स्किन की टैनिंग जो है इंप्रूव होती है, स्किन की टैनिंग जो है रिमूव होती है, खत्म होती है, ठीक? या कोजिक एसिड या हेलार्निक एसिड की मैंने एक क्रीम बनाई है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज बनाए, एंड आई एम चेकिंग आउट द लेवल ऑफ टैनिंग, एंड उस फिगर को बिफोर एंड आफ्टर की जो फिगर है मैंने उसको जो रिजोल्यूशन को चेंज कर दिया, उसको इमेज को चेंज कर दिया, उसके कलर्स को चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। So we will have to justify, we will have to ask ourselves whether these I would say improvisation of figure is affecting the credibility of a research or not. ये क्वेश्चन खुद से पूछें और तब उस पर काम करें। तो रिजोल्यूशन ओरिजिनल टूल को इस्तेमाल करें, और उसकी जो कॉपी पेस्टिंग जब कर रहे हैं उस समय या फिर डाउनलोड कर रहे हैं, अगर उसमें ऑप्शन है
रिजोल्यूशन को डिफरेंट रिजोल्यूशन में सेव करने का, देन गो फॉर दैट, जैसे कैनवा में होता है। आपने देखा होगा कितने डीपीआई पे करना है, दैट कैनवा अलाउज यू अप टू ए लिमिट। एंड थर्डली मैंने बताया एआई और एआई असिस्टेड टूल्स। एआई असिस्टेड जो वेरियस टूल्स है, दे अलाउ यू, जो खुद जो ओपन एआई है या चैट जीपीटी है या प्रीफ्लेक्सिबिलिटी है, या फिर आप ये कहें कि MS365 में माइक्रोसॉफ्ट की जो इमेज जनरेटर है, वो भी जो है इंप्रूव कर सकता है रिजोल्यूशन को, एंड दैट इज वेरी मच हेल्पफुल। इन दिस वे आई थिंक वी कैन गो फॉर दैट। और ये करते वक्त ही ध्यान रखे, फोटो खींचते वक्त ही ध्यान रखे, जब कहता है कि आपको अच्छे कैमरे से उसको फोटो खींचता है। पता चला आपने रिसर्च कर रहे हैं, आप वेट लैब एनिमल स्टडी कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, फील्ड स्टडी कर रहे हैं, आपने फोटो लिया, जो ओरिजिनल फोटो ही आपने बिल्कुल ढंग का नहीं लिया, तो उसका रिजोल्यूशन एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगा। देयर इज ऑल, इट्स जस्ट अ लिमिट, ए लिमिट इज देयर, उससे ज्यादा आप उसको रिजोल्यूशन कर नहीं पाएंगे। तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेनेवर यू आर क्लिकिंग ए पिक, if it is not a graph or other things, in that case, that clicking a pic must be done very carefully and very responsibly, so that the resolution, higher resolution is ensured. If you have in your camera 50 megapixel option, then go for it. Remember to change the megapixels to higher resolution. Don't rely on or don't be dependent on applying the filters when you are clicking the images of some slide, something, So this I have already answered, Ali, that how can I benefit from AI tools in research without becoming completely dependent on them? Yeah, on need to know basis, on or whatever is required at most, then only go for AI, which can make it easier for you. Referencing, you want to apply the things, you want to get the things done. Referencing, you want to done that reference formatting, you want to get it done through the AI, get it done, no issue. पर रेफरेंस क्रिएशन के लिए अगर आप एआई पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो गलत है। नहीं, कितना करना है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट एआई को यूज करने में कोई गलती नहीं है। इवन जो यूज नहीं कर रहा है वो डिफॉल्टर है, वो दिक्कत में आएगा। इवन if you are not experiencing, you are experiencing that even your Gmail is prompting you what should be the answer of that particular email. Even you might be getting the summary of the email created by the Gemini. So Gemini, use Gemini, no issue. Even the Microsoft, when you are using the simple MS Office, it is being assisted by the Copilot, Microsoft Copilot. That is again a AI. So there is no harm in using if it is making it easier and cutting short your time, which you are devoting for the mere clerical work. mere clerical work को रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए यूज एआई, नो इशू। बट काम ही ना करना पड़े उसके लिए यूज करना है तो सॉरी टू से वो दिक्कत में आप आ जाएंगे, क्योंकि कितना भी आप यूज करेंगे, जो एक्सपर्ट बंदा होगा वो पकड़ लेगा कि ये एआई क्रिएटेड है नहीं है, वट ठीक है। सो वी हैव ए वेरी गुड डिस्कशन नाउ सो फार। तो मैं चाहूंगा कि आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो यू जस्ट पुट योर क्वेश्चंस, अपना अनम्यूट कीजिए और बताइए हमको, और करेंगे आंसर आप लोगों को। और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर इन दिस साइकिल वी आर द फैमिली ऑफ 8646 लर्नर्स, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। Ali, I'm going for your answer soon. I just want to inform another piece of information. What do I want to deliver to you? That for our university, HNB Gadwal University, we have the PhD admissions on. So you can go to the website, and even in social media also, I have put that you just hnbgu.ac.in. You will find the information there, and directly. So those who are having GATE, GPAT, NET qualification, they just need to fill the things, and they'll be able to join the PhD for 2025-26 session. Um,
ऑब्वियसली बिकॉज ये 2025-26 का है, तो यानी जो अपियरिंग वाले होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब 2026 में जो पीजी कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस जो थोड़ा पहले किए हैं, 1 साल पहले भी किए हैं, दे आर ओनली अलाउड, मतलब 2025 में आपका पास आउट होना चाहिए, 2026 नहीं, 2026 नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड especially for the pharmacy students who are GPAT qualified or GATE qualified, if they are interested, they can also join us. अगर आपको मेरी लैब ज्वाइन करनी है तो it's a opportunity for you that you can join me in my research lab if you have qualified the GATE, and in my coming project you may be there as a research fellow, and you will also get the benefit of getting the opportunity for doing the PhD also. तो आपको दोनों लगेंगे, तो जरूर अपने जिनको हो जानकारी, जिनको चाहते हो उनको दिए, मैंने डायरेक्ट लिंक आपको उसका ब्राउजर का जो है शेयर कर दिया है, समर्थ के थ्रू एंट्री होगी, ठीक है। सो फॉर मास्टर स्टूडेंट अली कहते हैं हु वांट्स टू पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, वुड यू रिकमेंड पब्लिशिंग ए रिव्यू पेपर एज स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए मैं तो इन जनरल नहीं करता हूँ रिकमेंड, बिकॉज रिव्यू पेपर इज टू बी रिटन बाय एन एक्सपर्ट। ये अब ट्रेंड आ गया कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में कि हर कोई रिव्यू लिख रहा है, बट ओनली द एक्सपर्ट शुड राइट। अगर आप मास्टर लिख भी रहे लिखिए आप, लेकिन तभी लिखिए जब आपको क्लोज सुपरविजन मिल रहा हो, उसमें पूरा जो है आपका सुपरवाइजर पूरा अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हो कि नहीं ऐसे होना है, ऐसे होना है, इसको हम ऐसे करेंगे, और वो अपने ढंग से कर रहा है, तब मैं मान सकता हूँ आप लिखिए। जब तक आपको क्लोज सुपरविजन नहीं है तब तक मत लिखिए, ठीक है। नहीं तो होता क्या है ना कि इफ यू आर लर्निंग रॉन्ग थिंग्स, आप सोचते हैं कि आप लर्न कर रहे हैं, पर सही चीज सीखने के लिए यू विल हैव टू अनलर्न अगेन एंड देन रीलर्न। सो इट्स बेटर टू गो फॉर learning the good thing in right way rather than going for wrong learning. Wrong learning is very dangerous. आप गलत चीज सीख गए तो क्या होगा, यू हैव टू अगेन, पहले तो भूलना पड़ेगा कि यार ये आदत छोड़ो, ऐसे नहीं करना, फिर नई चीज सीखनी पड़ेगी। तो ट्राई टू फोकस ऑन द जेन्युइननेस, और चाहे पेपर छोटा हो, थोड़ा काम हो, चलो भाई फिल्म में स्टडी कर ले, क्योंकि आप जर्नल लिखेंगे मास्टर स्टूडेंट में तो आप सोचेंगे यार मास्टर करते करते पेपर छप जाए, फिर आप अच्छा, मैं बता रहा हूँ सिनेरियो क्या आता, फिर आप सोचते सर जल्दी से पेपर छप जाए, तो चूटर पुटर जर्नल कोई हो जो जल्दी छाप दे, तो फिर उसमें कोई क्वालिटी का कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, फिर आप सोचेंगे यार पेपर ऐसे ही छप गया, सर पता नहीं क्यों 1-1 साल लगाते रहते हैं। तो इसमें है दिक्कत है, हम समझते नहीं, पेशेंस चाहिए करने के लिए, ठीक। चलिए, with the rapid integration of AI tools in academic research, how can researchers maintain originality and critical thinking while still benefiting from AI assistance? या देखिए, AI को हावी मत होने दीजिए, ह्यूमन ब्रेन के से ऊपर नहीं कोई चीज जा पाएगी, आप ये यकीन रखिए। दैट क्रिएटिविटी हमने जिसको क्रिएट किया है, वो हम उसके दूर जाने के, हम वो ज्यादा तेजी से गणनाएं कर पा रहा है, चीजों को सोच पा रहा है, लेकिन सोच क्या पा रहा है, जो हम उसे फीड कर रहे हैं ना, फीड कौन कर रहा है, वो तो हम ही कर रहे हैं ना। तो नो टेक्नोलॉजी कैन ओवरकम, इट कैन वो लाइटनिंग स्पीड से चीजों को कर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई वो मशीन है, हमारी अपनी लिमिटेशन है, वो ठीक है काम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिएटिव राइटिंग की बात आती है या क्रिएटिव ढंग से रिसर्च करने की बात आती है या रिसर्चर की बात आती है, तो तब अगर हम कहेंगे तो ह्यूमन ब्रेन को तो रीडिंग पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा और अच्छा सोचना पड़ेगा ही। जीनोम मैपिंग में जहां पर हजारों जीन्स को स्टडी करना था, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था, तो एआई ने जल्दी कर दी, मान लिया वो कर सकते हैं, हमें टाइम लगते 10 साल लगते, उसने कर दिया एक साल, ऐसा नहीं कि हमारे लिए असंभव था। So there are things we have to, have our bent of mind that yes, what we are, how we are seeing the things. एआई टूल्स पहले भी रहे हैं, मतलब एआई टूल्स जैसे कई और ऐसे टूल्स भी रहे हैं जिन्होंने किसी चीजों को इजी किया है, लेकिन एआई ने वाकई चीजें रिवोल्यूशनाइज तो की है, लेकिन हमें फोकस ये करना चाहिए कि हम उसे एआई को असिस्टिव टूल ही रहने दें। ऐसा नहीं कि एआई बैठ के रिसर्च करेगा, तो भाई साहब आपकी और हमारी सबके जो है एक स्टेक होल्डर्स जो है, उसके एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को तो साफ ही कर देगा, वो तो क्लियर कर देगा, वॉश आउट कर देगा। अपनी अगर आपको इंपॉर्टेंस बनानी है तो हमें एकेडमिक मिसकंडक्ट से दूर रहते हुए एआई को मत फीड कीजिए, अपना डेटा एआई को मत दीजिए, डोंट अपलोड योर एंटायर थीसिस एंटायर थिंग टू द एआई, कभी मत कीजिए।
उसको इनपुट वही दीजिए जितना उसे जानना चाहिए, उससे सीखिए, उसको पढ़ाइए मत। ऑब्वियसली सही कहा नैन्सी, दैट एआई शुड बी असिस्टेंट, नॉट बी द मास्टर ऑफ ह्यूमन। नहीं तो कोई देर नहीं है, अगर हम चीजों को ऐसे करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ ह्यूमन लेटर सूनर इन मेनी वेज। वो कई स्थितियां ऐसी पैदा कर सकता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कई बार एआई जो है हैक कर जाता है, पता चला प्लेन ही जो है गिर गया। एआई ने, आपने देखा, कैमरे हैक कर लिए, वो कर लिया, चीजें कर ली। तो इट इज गोइंग टू हैव ए detrimental impact on the human life, but we allowed that thing. Who allowed? We allowed. As a human being, we allowed. So we have to be the, torch bearer and vigilant of academic, for academic integrity. With this, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बताएं मुझे। I should be yeah. Yeah, fabrication is possible, and wonderfully fabrication is done by the AI, but the experts can identify it very easily. आप जो है कई चीजें हम जो है देखते हैं, एआई एक सेट पैटर्न पे काम करता है। जब हम खासकर स्टडीज करते हैं तो कोई पैटर्न पे नहीं होती चीजें, वो पकड़ में आ जाती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पकड़ में आती हैं। हो सकता है इमीडिएटली ना आए। बहुत अच्छे साइट, कई ऐप मैंने आर्टिकल देखे जो बहुत अच्छे साइट हुए और उसके बाद पता चला कि वो एक खतरनाक एकेडमिक मिसकंडक्ट था। 2020-21 के बाद से, एआई के एडवेंट के बाद से, जो आर्टिकल की बाढ़ आई है पर पर्सन, जो आर्टिकल्स की, वो किस कारण आई है? इसी कारण आई। दैट्स द वे। तो any free online presume checking site can you suggest? You can, Nagaraju ji, what you can do, that every, whenever you are going for the free subscription, that's the problem for you. So I recommend that you just take the subscription, at least 1 year subscription, 400-500 rupees you will get, maybe say 700 rupees you will get. So just buy it, that is better, rather than depending on the free plagiarism site. They are going to ruin your data. वो आपको एक तरह से जो है गलत चीजों को तरफ लेके जाएंगे। तो बेटर, अल्टरनेटिवली यू मस्ट कंसल्ट योर लाइब्रेरियन, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन द टर्निट, नाउ द टर्निटिन इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज नाउ, बिकॉज उरकुंड हैज बीन, जो उरकुंड का हमने जिक्र किया था, उरकुंड हैज बीन परचेज बाय द टर्निटिन। So Turnitin and Authenticate is, I think, in our university, Authenticate is available rather. So Government of India is giving the subscription prices for that, and your library is going to support you if you are in a university setup. Okay. uh, Offer at fellowship research for, no, university, Ali, the university don't provide directly the internship for the foreign students until they are backed by the funding agencies of their home country or our country on a particular scheme. Okay. Otherwise, for the foreign, uh, this particular call is only for the Indian citizens. You might be seeing that in the very first line, you will find that he or she must be an Indian citizen. So if you are coming through a particularly from science agencies like DST collaborations or your science department or science ministry of your country, then obviously the foreign student can also come. The foreign student do come for a PhD in our country, but under a particular or exclusive research scheme only, where they are allowed to do the PhD in our country or in our university. Okay. However, but if you are carrying, that is that if you're carrying a postdoctoral fellowship already and you have the opportunity, you can go for that. If you want to go for that, recently, JSPS, Japanese Society of Pharmaceutical Sciences, have opened its door for the PhD and the other research works. Well, GSPS is for postdoctoral research work as well as for PhD. They have opened up the doors, so you can just apply, provided you know someone in Japan who can host you as a researcher. So there are opportunities in the abroad also for different disciplines, and this is the high time. इस समय सबसे ज्यादा आती हैं, तो उन पर नजर रखिएगा। आपको जो है यूरोपियन कंट्रीज में भी मिलेगा। एरास्मस मुंडस के थ्रू पीजी करने के लिए भी आपको फैसिलिटी, अभी फॉर्म ओपन है, आप देख सकते हैं। यूरोप में आपको बहुत अच्छे अट्रैक्टिव जो है ऑफर्स मिलेंगे। पूरी उनको जो है वो होंगे जो फेलोशिप्स
are provided, very lucrative fellowships are provided by the European countries, and sometimes they completely waive off the entire fee, in the, even in the living, they entirely waive off. So just this is a high time, just go through the various domains where the informations are available. So Japan, I have given you the example. The European countries through Erasmus Mundus is still open. You go in that particular scheme for doing the PG and the PhD, JS basis for PhD. Okay. So, and keep on checking if you want to go for the international conferences, that keep on checking if, for next year 2027. In very rare cases you will find the opportunity to appear into a this year's conference which are reputed one. Don't go for the conferences which are going daily, where you will find one single person who is the coordinator for a series of conferences, so they are just for making money. Okay, so just go for the conferences which are organized by the reputed societies, professional societies, agencies, publishers, or universities. Reputed one only. Otherwise, you will find that in a particular country, daily, every day, 3 conferences are there, and for every almost for entire month's conferences, if there are 100 conferences, for 38 conferences in a particular city, the single point of contact, the SPOC or the organizing secretary will be the same. You can have an idea, okay, that what is going on. So please be aware that there are shops in the name of research which are opened nowadays. So we should keep distance from these shops and preserve our academic integrity. With this thought, I would like to conclude this particular session. We have completed the 1 hour, and आपकी कोई भी query हो, बाकी मैंने कहा आपको that you please do share this opportunity of doing the PhD in our university and my research lab if you want to do, and if you foreign researchers are there, if you are having funding at your own level, you are most welcome as in my research lab. Though we are having the scarce resources, but we do good research work with the collaborations of various stakeholders with me. So it's always a pleasure to be. Thank you, Ali, thank you, Abhishek, and thank you all the learners. Thank you, Nancy. Thank you for sparing the time. It's always maybe next week. I may not be able to conduct the live session. I'll try rather, but this just for information. But I may, because I may be on a particular trip. So thank you, friends, and just concluding this session, and we'll meet you again. Okay, stopping the